Good morning students. Today we are going to start with applications of linear equations in two variables. Means what we are going to see how to frame linear equations from given word problems. ठीक है? For that purpose we are going to solve practice set 1.5. ठीक है? So we are going to solve first question. Two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Then we have to find the numbers. Understood? Means what? There are two numbers. One number is a greater number and second number is smaller number. So we are going to find those two numbers. So basically, first step of solving linear equations in two variables is what? Assigning variables to the given conditions. ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? Let the smaller number be x and the greater number be y. ठीक है? तो जो दो अननोन नंबर्स है उनको मैंने सबसे पहले एज्यूम कर लिया. See, so for solving these linear equations we require two equations. ठीक है? तो अगर मेरे पास दो वेरिएबल है तो मुझे कितने इक्वेशंस लगेंगे? दो इक्वेशंस लगेंगे. वो दोनों इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए आपको क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन होंगी. तो we have to find those two conditions. So first condition is given in first statement, that is two numbers differ by 3. Means what? From condition 1, what are those two numbers? X and y, and those differ by 3 means what? Greater number minus smaller number is what? 3. Therefore y minus x is equals to 3. ठीक है? This is your equation number 1. Similarly, next statement या फिर another statements will give us second condition for second equation in linear equation in two variables. Now second condition will give us second equation. ठीक है? So from condition 2, the sum of twice the smaller number. Twice the smaller number. Smaller number is what? X. Twice the smaller number means what? 2x plus thrice the greater number. Greater number is what? Y. So 3y. इन दोनों की sum is equals to what? 19. This is our equation number 2. So दो conditions given होंगी question में. उन दोनों conditions से आपको दो equations मिलेंगे. And after getting these two equations, we have to solve the equations. For solving of the equations, we have basically again four methods: elimination method, substitution method, graphical method, and Cramer's rules. You can choose any of the method for solving these linear equations. ठीक है? तो इसको मैं solve करूँगा. अभी देखो, I will solve these equations by substitution method. Substitution method की revision भी हो जाएगी हमारे यहाँ पर. ठीक है? So from equation 1 उसको हम convert कर देंगे. y minus x is equal to 3. Therefore y is equal to 3 plus x. मतलब हमने y की वैल्यू in terms of x फाइंड आउट कर ली. और ये वैल्यू में क्या करूंगा? इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. नाउ सब्स्टिट्यूट y is equal to x plus 3 in equation 2. What is our equation 2? 2x plus 3y equals to 19. Therefore 2x plus 3y is equals to 19. इक्वेशन लिख दिया. उसमें हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2x plus 3 into y की जगह पे क्या होगा? x plus 3 is equals to 19. So 2x 3 multiply होगा ब्रैकेट में दोनों टर्म्स को. 3 into x becomes 3x plus 3 3 is 9 is equals to 19. Now these are like terms. So 2x plus 3x will give 5x plus 9 is equals to 19. तो ये प्लस है वहां पे जाके माइनस होगा. ये आपका आंसर आएगा 5x is equals to 10. Therefore x is equals to 10 upon 5. 5 1 जा 5 2 जा x is equals to 2. तो एक नंबर मुझे मिल गया. Now we'll do what? We'll substitute value of this variable x in this y is equal to x plus 3. ठीक है? Therefore substitute x equals to 2 in किसमें substitute करना है हमें? y is equals to x plus 3. Then y is equals to x की वैल्यू क्या है? 2 plus 3. Then y is equals to 2 plus 3 is what? 5. So here we have our two numbers. First number is 2, second number is 5. So
What is x? The smaller number. And what is y? The greater number. तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, that is important. Therefore, the smaller number is क्या है x की वैल्यू 2 and the greater number is 5. Okay? Therefore, the solution of the given equation is what? 2 and 5. Understood? Okay. Next, question number 2. In question number 2, the question is complete the following. देखो एक rectangle given है and वहां पे लिखा है I am a rectangle and dimensions of the rectangles are given in terms of variable x and y. Next box में लिखा है देखो find the values of x and y. मतलब आपको x and y find out करना है, मतलब आपको dimensions find out करने हैं rectangle के and find the perimeter of and area. ठीक है, this is our question. तो इस क्वेश्चन में देखो इस रेक्टेंगल में बेसिकली आपको डायमेंशंस गिवन है, मतलब आपको लेंथ गिवन है, आपको ब्रेड्थ गिवन है, बट लीनियर इक्वेशंस गिवन नहीं है. सो वी आर गोइंग टू डिराइव दोस लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम दिस फिगर. सो हाउ टू डिराइव दोस टू लीनियर इक्वेशंस? तो वी हैव टू यूज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल. व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. ठीक है, एज opposite sides of rectangle are equal. सबसे पहले 4x minus y is equals to what? 2x plus y plus 8. We have to solve this. 4x plus 2x यहाँ पे क्या बनेगा minus 1, ये minus y plus y यहाँ पे क्या बनेगा minus y is equals to 8. ये like terms है. 4x minus 2x is what? 2x minus y becomes minus 2y and 8. After that we are going to divide by 2 on both sides. तो यहाँ पे क्या बचेगा? x minus y is equals to 4. ये आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली जैसे मैंने इन दोनों लेंस को इक्वेट किया वैसे I am going to equate these two breadths. Again ये फर्स्ट मिल गया हमें. सेकेंड x plus 4 is equals to 2y. So rearrange करके लिख देंगे इसको. x minus 2y is equals to minus 4. यह आपका होगा इक्वेशन नंबर 2. Now we have our two linear equations in two variables. x minus y is equals to 4 and x minus 2y is equals to minus 4. तो आगे हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए. दो इक्वेशंस आने के बाद क्या करेंगे हम? We are going to solve them by different methods. You can opt any of the method for solving. तो मैं इसको elimination method से solve करूंगा. यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशंस को. ये बन जाएगा x minus y is equals to 4 minus x minus 2y is equals to minus 4. तो सब्ट्रैक्शन के केस में पता है हमें चेंज ऑफ साइन होते हैं सेकेंड इक्वेशन के. ये प्लस x बनेगा माइनस दिस minus 2y becomes plus and minus 4 becomes plus. Understood? तो x minus x get cancelled. minus y plus 2y. 2y minus y कितना हो जाएगा? y is equals to 4 plus 4 8. मतलब मुझे फर्स्ट वेरिएबल मिल गया y is equals to 8. Next step is what? We have to substitute y is equals to 8 in any of the equation. I am going to substitute in equation 1. Equation 1 क्या है हमारा? x minus y is equals to 4. तो x के जगह पे x as it is minus y के जगह पे 8 is equals to 4. Therefore x is equals to 4 minus 8 वहां पे जाके plus 8 बनेगा. तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 12. ठीक है, तो मेरे पास अभी मेरे दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है, उनके वैल्यूज प्रेजेंट है. x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू है 8. नाउ हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया जहां पे आपको पूछा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. सो व्हाट इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? फॉर्मूला क्या होता है उसका? लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ. मतलब I have to find out length of the rectangle firstly and breadth and then I will calculate perimeter and area. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. अब ये लेंथ देखो, ये दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो. ठीक है, तो मैंने ले लिया 4x minus 1. Understood?
Now I have to substitute values of x and y here. X की वैल्यू कितनी है 12, 4 into 12 माइनस y की वैल्यू कितनी है 8. ये कितना आ जाएगा 12 4 is 48 minus 8 that is 40 यूनिट. ठीक है, as unit is not given in the question so हम लिखेंगे लेंथ की यूनिट. ठीक है, उसके बाद ब्रेड इज व्हाट यू कैन टेक आइदर ऑफ दिस. तो यहां पे मैं 2y लेता हूं. 2 into y की वैल्यू कितनी 8, इतना आ जाएगा 16 यूनिट. ठीक है, सो नाउ आई हैव लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, आई हैव ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. आफ्टर गेटिंग लेंथ एंड ब्रेड्थ वी कैन इजीली कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? Area of rectangle is equals to length into breadth. What is your length? 40, breadth 16. तो कितना आ जाएगा ये 640 स्क्वायर यूनिट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है इसका? 2 into L plus B. So it is 2. लेंथ कितनी है हमारी 40 प्लस ब्रेड्थ इज 16. इसके एडिशन करो 2 16 कितना आ जाएगा 56. 6 2 12 कैरी 112 यूनिट. ठीक है, सो दिस इज योर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. मतलब यहाँ पे जो दो पैरामीटर्स है वो क्या होंगे? Father's age and second पैरामीटर क्या होगा? Son's age. तो उनको सबसे पहले assume कर लेते हैं. तो let father's present age be x years. Similarly, son's present age be y years. Okay. So सबसे पहले हमने assumption कर लिया, दोनों के ages को assume कर लिया, एक को x variable consider कर लिया, दूसरे को y variable consider कर लिया. After that, first statement will give us condition 1. So from condition 1, the sum of father's age, father की age क्या है x plus twice the age of his son. Son की age कितनी है y? Twice of his age will be 2y is equals to 70 years. तो यह हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ने हमें क्या किया? फर्स्ट कंडीशन दे दी. आफ्टर दैट फ्रॉम कंडीशन 2, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, अभी फादर का प्रेजेंट एज कितना था? x था. उसको डबल किया मींस व्हाट? इट बिकम्स 2x एंड add it to son's age. इसको सन के एज में, सन का एज कितना है? y years. इसको ऐड कर दिया, then their sum is what? 95 years. ये इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अगेन we have two equations. We have to just solve them by any of the method. ठीक है, you can choose any method. Okay. So देखो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा. इस एलिमिनेशन मेथड में मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to equate the coefficients. मतलब जिस वेरिएबल को मुझे एलिमिनेट करना है उस वेरिएबल से कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाना पड़ेगा. अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे y को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 बिकॉज आई वांट टू एलिमिनेट y. ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x, 2 into 1 2y, 95 2 जा 190. ये आपका इक्वेशन नंबर आएगा 3. ठीक है, सो व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3. ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 में देखो दोनों के y जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट सेम है एंड उन दोनों के साइंस भी सेम है. तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो इक्वेशंस के वेरिएबल्स जिसको हमें एलिमिनेट करना है उनके सेम साइन होंगे तो वहां पे सब्ट्रैक्शन होगी, और अगर उनके साइन डिफरेंट होंगे तो वहां पे एडिशन होगी. ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, मैं इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं. तो ये हो जाएगा 4x plus 2y is equals to 190 minus x
plus 2y is equals to 70. तो as subtraction is known here, तो जो सेकेंड इक्वेशन होगा उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस x बनेगा माइनस, ये प्लस बनेगा माइनस, प्लस 70 becomes माइनस 4x माइनस x कितना आएगा 3x प्लस 2y माइनस 2y get eliminated is equals to 190 minus 70 is equals to what 120. ठीक है, so therefore x is equals to 120 upon 3, therefore x is equal to 3 1 3 40 the, तो x की वैल्यू कितनी आई 40. Now we are going to substitute value of x in any of the equation. You can substitute it in equation 1, equation 2 और equation 3, किसी में भी आप substitute कर सकते हो, ठीक है. So substitute x is equals to 40 in equation 1. Equation 1 क्या है, x plus 2y is equals to 70. ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 40, तो ये हो जाएगा 40 plus 2y is equals to 70. प्लस 40 वहां पे जाके माइनस होगा, therefore 2y is equals to 70 minus 40, therefore y is equals to 30. Sorry, 2y is equals to 30, therefore y is equals to 30 upon 2. 2 1s are 2, 15s are, तो y की वैल्यू कितनी आई हमें, y is equals to 15. ठीक है, तो मुझे x की भी वैल्यू मिल गई है, y की भी वैल्यू मिल गई. But what is our x and y? X is what? Present age of father, and y is what? Present age of son. तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे लास्ट में, therefore present age of father is 40 years and present age of son is 15 years. ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है. सबसे पहले क्या करना है, याद रखना है हमें, जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं, दो पैरामीटर्स, उनको x एंड y एज्यूम करना है. आफ्टर दैट क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, उन स्टेटमेंट्स की हेल्प लेके हमें दो इक्वेशंस ढूंढने. आफ्टर गेटिंग दोस टू इक्वेशंस we know how to solve it and we can use any of the method for solving it. Understood? Okay. Next we are going to solve question number 4. The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. The denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Then we have to find the fraction. तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, we have to find fraction. फ्रैक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू एज्यूम न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन. तो सबसे पहली स्टेप होगी, देयरफॉर लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x. सिमिलरली डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन विल बी y. ठीक है, तो मैंने अपने दो पैरामीटर्स को एज्यूम कर लिया, एक है हमारा न्यूमरेटर है, दूसरा डिनोमिनेटर. तो उसके बाद क्या होगा, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं हम, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर क्या है हमारा x एंड डिनोमिनेटर इज y. सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज व्हाट, x अपॉन y. ये सबसे पहले ये जो दो पैरामीटर्स एज्यूम करने के बाद हम कंडीशंस को देखेंगे और उन कंडीशंस के हेल्प से we are going to write equations. So from condition 1, what is our first condition? The denominator of a fraction is, what is our denominator? Y. Y is equal to 4 more than twice the numerator. Numerator क्या है मेरा x, तो twice the numerator becomes 2x and say greater than 4. So denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. So this is our condition 1. Understood? ये हमारा equation 1 हो जाएगा. ठीक है. Similarly from condition 2. Condition 2 will give us equation number 2. अभी उस condition में देखो क्या बोला है कि denominator becomes 12 times the numerator. But when numerator and denominator both are reduced by 6, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा if numerator and denominator both reduced by 6, then my numerator becomes
पहला क्या था मेरा न्यूमरेटर, माय न्यूमरेटर वाज x, तो क्या बन जाएगा x minus 6. Similarly my denominator becomes what is my first denominator y, it becomes y minus 6. ठीक है, तो मेरे पास न्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आ गए. तो हमारी कंडीशन क्या बोलती है अभी कि डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. सो कंडीशन के हिसाब से डिनोमिनेटर क्या है मेरा y minus 6 becomes 12 times of what न्यूमरेटर. न्यूमरेटर क्या है मेरा x minus 6. ठीक है, समझ में आई कंडीशन कैसे लिखी. डिनोमिनेटर इज 12 times द न्यूमरेटर. ठीक है, तो ये y minus 6 ऐसे ही रहेगा. ये 12 दोनों को मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, 12 into x become 12x minus 12 6 70. ठीक है, अंडरस्टूड. सो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे. सो फ्रॉम 1 y की वैल्यू क्या है 2x plus 4. तो उस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में क्या करूंगा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. ठीक है, फ्रॉम 1 y is equal to 2x plus 4 substituting इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 क्या है y minus 6 is equals to 12x minus 72. ठीक है, तो y की जगह पे क्या आएगा 2x plus 4 2x plus 4 minus 6 is equals to 12x minus 72. मतलब पूरा इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू रीअरेंज द टर्म्स. वो क्या बन जाएगा 12x minus 2x plus 2x वहां पे जाके माइनस होगा. ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 72 यहाँ पे प्लस होगा 72 प्लस 4 माइनस 6. ठीक है, सो 12x minus 2x is what 10x which is equals to 76 minus 6. So therefore x is equal to 70. 10x equals to 70. Therefore x is equals to 70 upon 10. तो x की वैल्यू कितनी आई 7. Then what we are going to substitute value of x in equation number 1. ठीक है, substitute x is equal to 7 in equation 1. Equation 1 क्या है y is equals to 2x plus 4. Therefore y is equals to 2 into 7 plus 4. Therefore y is equals to 7 to 14 plus 4. y की वैल्यू कितनी है 18. ठीक है, so now I have value of x as well as value of y. But we have to find the fraction, and the fraction is in the form of required fraction is what x upon y. ठीक है, तो लास्ट में आपका स्टेटमेंट होगा therefore the required fraction is क्या फॉर्म में वो x upon y. x is what x की वैल्यू कितनी आएगी 7 upon 18. ठीक है, so our required fraction is what 7 upon 18. Understood? This is how we are going to solve the questions of numerator and denominator. ठीक है, next we are going to see question number 5. Two types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B. So that if it is fully loaded, find the weight of each type of box. See, this question is very simple. ठीक है, आपको basically given is what two types of boxes are there, box A, type A and type B. ठीक है, तो उनको सबसे पहले हम assume कर लेंगे. और क्या पूछा है हमें find the weight of the boxes. तो जो हमें पूछा है उसको हम assume कर लेंगे. Therefore let weight of box of A type, उसको क्या assume कर लेते हैं x kg. ठीक है, similarly weight of box B क्या हो जाएगा y kg. ओके, तो सबसे पहले मैंने एज्यूम कर लिया जो हमें फाइंड आउट करना है कि वेट ऑफ बॉक्स ए एंड बी. अभी इस क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ना, ठीक है, वरना ये क्वेश्चन बहुत लेंथी लगेगा, आपको लगेगा दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, सो बेसिकली क्या बोला है कि टाइप ए एंड टाइप बी के बॉक्स का वेट वो 10 टन ही रहने वाला है, बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ दैट ट्रक इज 10 टन्स.
ठीक है। सो फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट we'll get our first equation। देखो when 150 boxes of type A टाइप के कितने बॉक्सेस है? 150 बॉक्सेस। तो फ्रॉम कंडीशन 1 150 boxes of A type that is 150 into x। तो अगर 150 into x कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वेट ऑफ बॉक्स A, ठीक है, मतलब 150 नंबर ऑफ बॉक्स ए उनका टोटल वेट मिल जाएगा, प्लस सेकंड क्या बोला उन्होंने? 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, तो इट बिकम्स 100 वार। और इन दोनों का वेट मिला के कितने होने वाला है? 10 टर्न्स, ठीक है, 10 टर्न्स। आपको यहाँ पे कन्वर्जन लक्षण 10 टर्न्स, तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन ध्यान में रखना है। 1 टर्न इज इक्वल्स टू 1000 kg, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बाय 1000, ये कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। देयरफॉर इट बिकम्स 150x plus 100y is equals to 10,000। Now we have converted weight from ton to kg, ठीक है, because we assume the weight of box in kg। Now we are going to divide, see all are the multiples of 50, तो मैं divide करूंगा, divide by 50 on both sides। तो ये हो जाएगा 150 x अपॉन 50 कितना आ जाएगा? 1 जा 3 जा 100 y अपॉन 50 1 जा 2 जा इज इक्वल्स टू 10,000 अपॉन 50, ये कितना आ जाएगा? 200। तो मेरा इक्वेशन रिड्यूस क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200। ये मुझे मिला इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम कंडीशन 2 सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या दिया है वहां पे? 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन अ ट्रक। तो ये क्या हो जाएगा? 260x प्लस इट कैन एकोमोडेट 40 टाइप्स ऑफ बॉक्स बी, तो ये हो जाएगा 40y इज इक्वल्स टू, अगेन इस क्वेश्चन में याद क्या रखना है? द कैपेसिटी ऑफ द ट्रक इज व्हाट? 10 टन। ये सब मिला के कितना होगा? 10 टन्स। तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए अगेन आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000। तो हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 260x plus 40y is equals to 10,000। इसको मैं और सिंपलीफाई कर सकता हूं। इन सब का कॉमन मल्टीपल क्या है? 13, तो मैं डिवाइड करूंगा 13 सॉरी, तो इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है? सिंपलीफाई करना है। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है? सिंपलीफाई करना है। तो इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के लिए मुझे कॉमन डिवाइजर देखना पड़ेगा। 260 40 एंड 10,000 का कॉमन डिवाइजर क्या है? 20, ठीक है। तो मैं डिवाइड करूंगा बाय 20, डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 260 अपॉन 20x प्लस 40y अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 10,000 अपॉन 20। तो इसको क्या 0 0 कैंसिल 1 जा 13 जा 0 0 कैंसिल 1 जा 2 जा 1 0 कैंसिल 2 1 जा 2 500 जा। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा रिड्यूस फॉर्म में 13x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 500। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन 1 यहाँ पे, इक्वेशन 2 यहाँ पे, दोनों के वेरिएबल्स देखो एंड उनके कोएफिशिएंट देखो। क्या दिखाई दे रहा है? द कोएफिशिएंट ऑफ y in equation 1 and the coefficient of y in equation 2 are same। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है एंड दोनों की साइन क्या है? पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एलिमिनेट कर दूंगा वेरिएबल y को। कैसे? बाय सब्ट्रैक्शन। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है? 13x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 500 माइनस इक्वेशन 1 क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200। सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज ऑफ साइन होंगे। प्लस 3 बिकम्स माइनस, प्लस बिकम माइनस, दिस प्लस बिकम्स माइनस। सो ये 30 माइनस 3 कितना? 10x आ जाएगा। प्लस 2y माइनस 2y गेट कैंसल्ड इज इक्वल्स टू 500 माइनस 200 कितना होगा? 300। ये 10 डिवाइड है, मल्टीप्लाई वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा 300। therefore x is equals to 300 upon 10। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30
kg. Understood? So we have value of x. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको? We are going to substitute. So substitute x is equals to 30 in equation. You can substitute in either of the equation 1 or equation number 2. मैं equation 1 में substitute करूंगा. Equation 1 क्या है? 3x plus 2y is equals to 200. तो x की जगह पे क्या आएगा? 30. 3 into 30 plus 2y is equals to 200. ये आ जाएगा 90 plus 2y is equals to 200 plus 90 वहाँ पे जाके minus, तो ये 2y is equals to 200 minus 90. Therefore 2y is equals to 110. Therefore y is equals to 110 upon 2. 2 1s are 2, 55. तो y की वैल्यू क्या आई? 55 kg. Understood? So last में क्या होगा हमारा statement, मतलब what we have assumed? We have assumed the weight of box A, that is x kg, and weight of box B, y kg. तो x की वैल्यू कितनी है? 30 kg. तो क्या बोलेंगे हम? Therefore weight of box A is 30 kg and weight of box B is what? 55 kg. ठीक है, statement क्या होगा? Therefore weight of box A is 30 kg and weight of box B is 55 kg. ठीक है, मतलब क्वेश्चन लेंदी दिखाई दे रहा है लेकिन उसको सॉल्व करना उतना ही सिंपल. समझ में आया सबको? क्या करना है? बेसिकली जो अननोन है उनको एज्यूम करना है, आगे कंडीशंस गिवन होंगी, वहां से इक्वेशंस डिराइव करने हैं और इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 6. आउट ऑफ 1900 किलोमीटर Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed of 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance traveled by bus. Means what we have to find distance traveled by Vishal with the help of bus. बस से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये हमें पूछा है. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है हमें? 1900 किलोमीटर. उसमें से उसने कुछ पार्ट बस से ट्रैवल किया है एंड कुछ पार्ट एरोप्लेन से ट्रैवल किया. उसके लिए आपको स्पीड ऑफ बस गिवन है एज वेल एज स्पीड ऑफ एरोप्लेन गिवन है. तो यहां से आपको क्या पूछा है कि विशाल ने बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस कितना है. दिस इज अवर क्वेश्चन. समझ में आया सबको? क्वेश्चन को धीरे से रीड करना है और उसके लिए आपको सबसे पहले एक सेंटेंस को ब्रेक करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कौन सी कंडीशन हमें इक्वेशन देगी. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे पहला पार्ट है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, ये पहला सेंटेंस ही हमें फर्स्ट कंडीशन देगा. अंडरस्टूड? तो सबसे पहले मुझे क्या अज्यूम करना पड़ेगा? लेट डिस्टेंस traveled by bus be x kilometer and distance traveled by aeroplane be y kilometer. दोनों डिस्टेंसेस को मैंने कंसीडर कर लिया, एज्यूम कर लिया. एक को x किलोमीटर किया, दूसरे को y किलोमीटर एज्यूम किया. उसके बाद मैंने जैसे बोला था आपको कि कंडीशन 1 मतलब आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है वही आपको कंडीशन 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 देगा. ठीक है, तो वहां पे क्या बोला है? आउट ऑफ 1900 किलोमीटर. इसका मतलब कुछ डिस्टेंस जो बस ने ट्रैवल किया एंड कुछ डिस्टेंस जो एरोप्लेन ने ट्रैवल किया. उन दोनों डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ वहां पे? 1900 किलोमीटर. तो उसको कैसे लिखेंगे? देयरफॉर x plus y डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस plus distance traveled by aeroplane is equals to 1900 किलोमीटर. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, समझ में आया सबको? सिमिलरली अभी यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट आपको स्पीड ऑफ द बस गिवन है एंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज गिवन. तो उस स्पीड से हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे. स्पीड दी है वहां पे, टाइम है वहां पे, तो एक रिलेशन यहाँ पे याद आता है. वो कौन सा रिलेशन होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. फिर लिखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. आपको क्वेश्चन में देखो गिवन है कि टोटल टाइम टेकन फॉर दिस ट्रैवल इज व्हाट? 5 आवर्स. तो ये टोटल टाइम कैसे मिला मुझे? फर्स्ट इज टाइम टेकन बाय बस एंड सेकंड इज टाइम टेकन बाय एरोप्लेन. तो उन दोनों के टाइम्स की एडिशन कितनी आती है? 5 आवर्स.
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम ढूंढना पड़ेगा। तो टाइम ढूंढने के लिए मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, ये डिवाइड यहाँ पे कि मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड टाइम टेकन बाय बस। बस ने कितना टाइम लिया, अगेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस क्या है, x किलोमीटर, एंड स्पीड ऑफ द बस कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपको टाइम टेकन बाय बस मिला। फिर आपको मिलेगा टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। एरोप्लेन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन इज व्हाट, y, तो ये y अपॉन स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज व्हाट, 700 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या मिल गया मुझे यहां से, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन इज y अपॉन 700 आवर्स। ठीक है, नाउ आई हैव टाइम टेकन बाय बस एंड टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। उससे मुझे क्या मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन। अभी टोटल टाइम टेकन फॉर ट्रैवल क्या है, 5 आवर्स, देयरफॉर फ्रॉम कंडीशन 2 time taken by bus, that is x upon 60, plus time taken by aeroplane, that is y upon 700, तो ये टोटल टाइम कितना लेता है, ये 5 hours to complete the journey। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को मुझे सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 700, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, 700x plus 60y upon 60 into 700 is equals to 5। सिंपलीफाई करके आंसर आ जाएगा 700x plus 60y is equals to, ये वहां पे यहाँ पे डिवाइड है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 into 60 into 700, तो 700x plus 60y is equals to 6 5 30, 37 210 और 3 zeros ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, now we are going to divide whole equation by 10, divide by 10 on both sides। ये आ जाएगा 70x plus 6y is equals to 21000। Okay, this is our equation number 2। Now I have equation 1 and equation 2। We have to just solve these two equation and we can use any of the method for solving। ठीक है, तो यहाँ पे from 1 इसको कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे एलिमिनेशन मेथड के लिए। y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6, तो इक्वेशन 1 चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा वो, 6x plus 6y is equals to 11400। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। Now we are going to take equation number 2 and equation number 3 for calculation। ठीक है, equation 2 and equation number 3। देखो y जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट सेम है एंड उनके साइन भी सेम है। जब सेम साइन होते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। Therefore equation 3 minus equation 2, what is our equation? Therefore equation 2 minus equation 3, what is equation 2? 70x plus 6y is equals to 2130, and equation number 3 is what, 6x plus 6y is equal to 11400। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, सेकंड जो इक्वेशन है उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस बनता है माइनस, दिस इज माइनस एंड दिस प्लस बिकम्स माइनस। 70 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 64x प्लस 6y माइनस 6y गेट कैंसिल्ड, 21,000 माइनस 11,400, 9,600। ठीक है, therefore x is equals to 9,600 अपॉन 64। 64 को मान लो सबसे पहले 8 से सॉल्व करके देख लो, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 2 जा 1200 आ गया, 8 से यहाँ पे सॉल्व करो, 8 1 जा 8, 4 बचता है 40, 8 5 जा 40, तो x की वैल्यू आ गई 150 किलोमीटर। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, लास्ट स्टेटमेंट, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस।
मतलब सिर्फ बस से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस हमें पूछा है एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस हमने क्या एज्यूम किया उसको x, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे हमारा आंसर एंड होता है। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन क्वेश्चन में नहीं पूछा है, सो वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड दैट डिस्टेंस, मींस वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ फाई। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है। अंडरस्टूड? मतलब क्या करना है हमें, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस एज्यूम किया हमने, सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन एज्यूम किया, ठीक है। फिर कंडीशन 1 क्या थी कि टोटल डिस्टेंस कितना है 1900, तो उसको मैंने एज्यूम कर लिया, तो यहां से मुझे कंडीशन 1 से इक्वेशन 1 मिला, x + y = 1900, ठीक है। सेकंड, इन सेकंड कंडीशन relation between speed and time is given, so we are going to use formula speed is equal to distance upon time, and as time is given in the question, तो time is equal to distance upon speed मैंने इसको rearrange कर दिया। then time taken by bus is what, distance traveled by bus कितना है वो x है upon speed of the bus that is 60 km/h, तो इसको सॉल्व मतलब ये टाइम टेकन कितना आ जाएगा x upon 60। Similarly, time taken by aeroplane is what, distance traveled by aeroplane upon speed of the aeroplane y upon 700। तो इस कंडीशन से मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन x upon 60 plus y upon 700 is equal to 5 hours। इसको रीअरेंज करके सिंपलीफाई करके हमने इक्वेशन 2 मिला हमें 70x plus 6y is equal to 21,000। नाउ इसको मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया और एलिमिनेट y को एलिमिनेट करके मुझे किसकी वैल्यू मिली, x की, एंड द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 150 किलोमीटर। सो लास्ट में डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज 150 किलोमीटर। अंडरस्टूड? समझ में आया? मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको याद क्या रखना है, क्वेश्चन रीड करने के बाद यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई जो दो पैरामीटर्स हैं उनको एज्यूम करना है, उन दो पैरामीटर्स को असाइन करने हैं वेरिएबल्स x एंड y। आफ्टर असाइनिंग द वेरिएबल्स आपको क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन होंगी, वो दो कंडीशंस विल गिव यू टू लीनियर इक्वेशंस, और फिर उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। समझ में आया? ठीक है, थैंक यू।